Yeah. So these imperfections in solids are caused by various types of, you can say, dislocation of atoms, or you can say deviation from exact geometry which is predicted by theoretical aspects. जो भी हमने different geometries किए हैं उनसे थोड़ा सा भी deviation है. And as you know that practically this ideal arrangement is not possible when crystals are formed. So two types of defects are there: point defects and line defects, as we have already discussed yesterday. Point defects arise due to dislocation, or you can say appearance of certain other atoms in between interstitial spaces or certain lattice points if they are replaced by some other atoms. And line defects may be caused by irregularities around a, or you can say in the entire row of lattice points, then they are known as line defects. But we have only point defects in our syllabus, and point defects are further of three types. Stoichiometric defects are those defects which do not disturb the stoichiometry of solid, means ratio of cations and anions agar disturb nahi hota, then these type of defects are called stoichiometric. They are also called intrinsic or thermodynamic effect. अब इसमें दो टाइप्स के वैकेंसी, आप यहाँ जिस डायग्राम से थोड़ा सा रिमाइंड करवा देती हूँ आपको एक रिकैप. वैकेंसी डिफेक्ट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन विच some atoms are missing from their lattice point. Lattice points में atom miss हो जाते हैं. ऐसा कब होता है? जब कई बार हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं. तो दिस इज ऑल्सो नोन एज थर्मोडायनेमिक. वैसे तो ये सारे स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट्स ही एक तरह के थर्मोडायनेमिक इफेक्ट्स हैं, बिकॉज बाय हीटिंग दे मे बी caused. But otherwise, mainly if it is asked which type of defect is caused when a particular substance is heated up, then generally vacancy defect is created. Okay. So यहाँ पर आप बुक में अंडरलाइन भी कर सकते हो if you have NCERT books with you. This defect arises when a substance is heated. ठीक है, अदरवाइज है तो ओके है, बट हीट करने पे भी अराइज हो सकता है. एंड दिस डिफेक्ट डिक्रीज रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन डेंसिटी. ऑब्वियसली जब एटम्स कम हो जाएंगे क्रिस्टल में, देन दैट डेंसिटी विल डिक्रीज. सेकेंड है आपके पास इंटरस्टिशियल इफेक्ट. इफ यू सी द डायग्राम here, this is the exact lattice points जो one इतने same distance पे, but few extra atoms, this one and this one, two extra atoms have occupied these interstitial sites जो otherwise ideal arrangement में खाली होने चाहिए थे voids की form में. These voids और interstitial sites कहते हैं इनको. These are occupied by certain other atoms. So hence this defect is known as interstitial defect. तो ये दोनों ही defect non-ionic solids में होते हैं. In case of ionic solids, these defects are of you can say named by थोड़ा सा difference है इनमें. So this is first one we see Schottky defect. Here you can see equal number of cations and anions. यहाँ से एक anion missing है, यहाँ से एक cation missing है. तो आप इसको simply इतने सारे प्लस माइनस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं. आप एक छोटा सा बॉक्स बना के उसमें मतलब एक cation और एक anion alternate 5-6 like 3-4 एक रो में बना लो, और ऐसे वर्टिकल 2-3-4 रोज बना लो. मतलब इतना बना दो, और बहुत ज्यादा आयन्स क्लोज दिखाने की जरूरत नहीं है. बीच में इस तरह के स्पेस देके बना सकते हो, लाइंस शो कर सकते हो बीच में. बस इसी तरह से इसको जनरली ड्रॉ किया जाता है नोटबुक पे. ठीक है, तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायन शुड बी मिसिंग. अगर आप एक पेयर स्किप करवा रहे हो तो एक एनायन और एक कैटायन मिसिंग होना चाहिए. इफ यू आर शोइंग 2 पेयर्स तो एक यहाँ पे भी एनायन मिसिंग है और एक और कैटायन मिसिंग होगा आसपास दिस वन. तो हियर 2 पेयर्स ऑफ cations and anions are missing in this example, but when it is asked to represent with the diagram in exam, तो आप एक पेयर भी मिसिंग कर सकते हो. 1 cation and 1 anion is to be you can say represented missing over there. तो मिसिंग के लिए आपको वो स्पेस खाली छोड़ देना. अगर आप ऐसा ड्रॉ कर रहे हो तो इन दिस वे यू कैन शो दिस लाइक इसको खाली छोड़ दो यहाँ पे. अभी ये तो वैसे इम्प्यूरिटी डिफेक्ट का है, यहाँ स्ट्रॉन्शियम है, बट इन जनरल अगर आप इसी को फ्रेंकल डिफेक्ट के लिए शॉर्टके डिफेक्ट के लिए शो कर रहे हो तो यहाँ सोडियम आएगा, यहाँ एक खाली स्पेस छोड़ सकते हो आप, और एक क्लोराइड भी मिसिंग कर दो आसपास ही कहीं पे. ठीक है, तो इक्वल नंबर ऑफ cations and anions when they are missing from crystal lattice of ionic solid, then that defect is known as Schottky defect. So this is also kind of vacancy defect. But क्योंकि equal number में cation anion missing होते हैं, इसलिए crystal की stoichiometry पे कोई effect नहीं आता, neutrality भी maintain रहती है. Clear? But obviously density will get decreased. And Frenkel defect में क्या होता है बेटा, ये interstitial और vacancy दोनों defect का combination है.
पहले जो हमने ऊपर वैकेंसी और इंटरस्टिशियल पढ़े वो दोनों मिलेंगे यहाँ पे। ये देखो वैकेंसी है पॉजिटिव आयन की, केटायंस यहाँ पर स्किप हो गए, मतलब दे हैव लेफ्ट देयर वेकेंट साइड, लेटिस पॉइंट अपने छोड़ दिए उन्होंने, एंड बट क्रिस्टल से बाहर नहीं निकल गए, रादर दे हैव ऑक्यूपाइड सम इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ये इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया, यहाँ से केटायन अपनी स्पेस छोड़ के इट हैज ऑक्यूपाइड दिस स्पेस। तो दिस इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इंटरस्टिशियल भी है यहाँ पे, वैकेंसी भी है। क्लियर? तो दिस इज अ काइंड ऑफ फ्रेंकेल डिफेक्ट। अब एग्जांपल्स में थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है। Schottky defect is generally shown by alkali metal halides, सोडियम क्लोराइड, KCl, सीजियम क्लोराइड। एक एक्सेप्शन है AgBr जो ट्रांजिशन मेटल हैलाइड है, इट शोज बोथ डिफेक्ट। ये अंडरलाइन कर लेना बुक पे, और इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन में भी कई बार आया बोर्ड एग्जाम में। नेम और गिव वन एग्जांपल ऑफ a halide you can say which shows both Frenkel as well as Schottky defect. So it is silver bromide which shows both of these defects. Okay, otherwise generally alkali metal halide show this effect, this defect which has large coordination number. और यहाँ पर स्मॉल कोऑर्डिनेशन नंबर वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हैलाइड जो छोटे होते हैं कैटायन साइज में, बिकॉज ओनली स्मॉल कैटायंस कैन फाइंड स्पेस और दे ऑक्यूपाई दिस इंटरस्टिशियल स्पेस। क्लियर? नेक्स्ट इज impurity defect given in your book. impurity बेटा थोड़ा सा आप सोचो तो इस जो हमने कल पढ़ा था कि ऐसे एलिमेंट्स जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं उनमें एक केटायन स्मॉल वैलेंसी वाला अपनी जगह पे, उसकी जगह पे हायर वैलेंसी वाला केटायन आ जाता है। तो यहाँ पर उसी टाइप का डिफेक्ट है, बट ये डिफेक्ट इम्प्यूरिटी की फॉर्म में, क्योंकि सेम केटायन नहीं है, केटायन इज चेंज। फॉर एग्जाम्पल एक एल्कली मेटल हैलाइड सोडियम क्लोराइड का अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो यहाँ पर सोडियम के कुछ आयंस जहां मिसिंग है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन की हुई है किसी और केटायन ने, और उस केटायन का जो चार्ज होगा दैट विल बी हायर। तो एक चीज याद रखो, अगर आपको एग्जांपल पूछा गया है, कई बार एमसीक्यूज में डाल देते हैं कि मोल्टन सोडियम क्लोराइड हैज एन इम्प्यूरिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस, तो उसमें एग्जाम्पल्स आपको क्या कंसीडर करना है कि वो जो एग्जाम्पल हो उसमें से आपने हायर चार्ज वाला वो केटायन उठाना है जो इधर फ्रॉम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से ही होगा। एल्कलाई मेटल के तो सेम ही चार्ज होंगे, तो वो तो फिर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगी कि एक वैलेंसी भी है और एक सपोज यहाँ पे सीजियम आयन आपने रख दिया, तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल। तो एल्कली मेटल हैलाइड्स जनरली हैव इम्प्यूरिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आयंस। एल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस मतलब ग्रुप 2 के कैटायंस की इंप्यूरिटी होती है इनमें। रीजन क्या है? साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलता। तो अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ एक स्ट्रोंशियम आयन लिखा हुआ और बाकी सारे कोई उसमें कैडमियम आयन है, कोई लाइक 2 वैलेंसी वाला जिंक आयन, कोई भी और है जो ट्रांजिशन एलिमेंट से या DF ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग कर रहे हैं, आपने उस ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना चाहे उनके ऊपर चार्जेस 2 ही हो। रीजन बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट में रहता है कि वो इम्प्योरिटी इजीली मिक्स हो जाती है सॉल्ट्स के अंदर जिसमें केटायन का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा हो। तो alkali metals ions and alkaline earth metal ions are larger in size, so they easily occupy these interstitial position. और एग्जांपल अगर आप AgCl का देखो इम्प्यूरिटी की फॉर्म में, तो सिल्वर क्लोराइड इज अ ट्रांजिशन मेटल हैलाइड, D ब्लॉक एलिमेंट है सिल्वर, तो उसमें जो इम्प्यूरिटी आएगी दैट विल बी ऑफ कैडमियम आयन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद ध्यान देने के लिए। इफ इन ऑप्शनल ऑप्शंस आर देयर तो समटाइम्स स्टूडेंट्स कैन गेट कंफ्यूज कि हम कौन सा आयन सेलेक्ट करें, या तो सब पे ही वैलेंसी 2 है। वैलेंसी 2 वाला थोड़ा सा देख लेना, एस ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड्स हैं तो एस ब्लॉक में से ही सेलेक्ट करना, डी ब्लॉक है तो डी से, क्योंकि थोड़ा बहुत साइज और प्रॉपर्टीज का रिजेम्बलेंस रहता है उसमें। ये चीज क्लियर होगी। तो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट इज द काइंड ऑफ डिफेक्ट इन विच metal ions having lower valencies are replaced by cations of higher valency। तो उसमें क्या होगा, जब हायर वैलेंसी वाला कैटायन आएगा तो वो एक होगा, बट लोअर वैलेंसी वाला सपोज ये 1 वैलेंसी वाले थे तो 2 रिप्लेस होंगे, यहाँ से एक सोडियम इधर से हटा, एक यहाँ से हटा, ठीक है। अब एक तो स्ट्रोंशियम आयन आ गया बट दूसरी वैकेंसी क्रिएट होगी। तो दिस इज अ काइंड ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट विच इज कॉज्ड बाय एडिशन ऑफ extra cation having higher valency.
हायर वैलेंसी वाले कैटायन की वजह से ये एक वैकेंसी जनरेट हुई है, बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। हाँ, आपको स्टोइकियोमेट्री तो यहाँ डिस्टर्ब मिलेगी, बट इस डिफेक्ट को स्टोइकियोमेट्री में नहीं रखा, बिकॉज स्टोइकियोमेट्री में सेम ही टाइप का कैटायन होगा हायर वैलेंसी वाला, मतलब फेरस फेरिक हो सकता है, या मतलब जो भी ऐसे कैटायंस है जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ओनली दे विल बी shown that non-stoichiometric defect. Okay, here this is termed as impurity defect, where some other cation is getting mixed with the crystal lattice. Next, non-stoichiometry defect. Non-stoichiometry में आपको क्रिस्टल में जो रेशियो है कैटायंस और एनायंस का वो सेम नहीं आता, तो दिस इज कॉज्ड बाय टू टाइप्स, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी। दोनों ही चीजें आपको मेटल से रिलेट रखनी है। एक में मेटल का एक्सेस हो गया मतलब कैटायंस ज्यादा मिलेंगे आपको, और दूसरे में कैटायंस की डेफिशिएंसी मिलेगी। तो कैटायन ज्यादा मतलब मेटल एक्सेस कैन बी कॉज्ड बाय टू वेज, either some anion leave the crystal lattice or some extra cation get interstitial sites. Okay, दोनों पॉसिबिलिटी है ना, या तो एनायन कम हो जाए तो ऑब्वियसली एनायन निकल गया क्रिस्टल से बाहर तो कैटायंस बढ़ जाएंगे, तो मेटल एक्सेस हो गया, और दूसरी चीज मेटल आयन ही एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल साइट्स पे आ जाए। दोनों ही पॉसिबिलिटी है। ये वाली एक तरह का वैकेंसी डिफेक्ट हो गया, दूसरा एक तरह का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया, बट दोनों ही डिफेक्ट्स में रेशियो ऑफ कैटायंस एंड एनायंस गेट डिस्टर्ब। तो यहाँ मेटल एक्सेस के अंदर एक एग्जांपल, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब देखो बच्चे ना बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं, इस क्वेश्चन में आपको मैं एक आइडिया मतलब हिंट आप याद रखो। ये क्वेश्चन आता है ऐसे कि व्हेन NaCl इज हीटेड या एनी एल्कली हैलाइड इज हीटेड इन द वेपर ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर, जैसे सोडियम क्लोराइड को हीट करना सोडियम वेपर में, एंड lithium chloride when heated with lithium vapor, or potassium chloride when heated with potassium vapor, then color changes from yellow white to yellow in NaCl. KCl का जो कलर होता है वो वॉयलेट हो जाता है, लिथियम क्लोराइड बिकम्स पिंक। अदरवाइज ये तीनों सॉल्ट्स व्हाइट है, बट व्हेन दे आर हीटेड विद देयर एटॉमिक मेटालिक वेपर, उसी पर्टिकुलर मेटल की वेपर में अगर उनको हीट करें तो ये येलो व्हाइट या येलो पिंक या वॉयलेट रेस्पेक्टिवली जो भी इनके कलर्स हैं वो आ जाते हैं। तो अब बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इफ इट इज रिटन व्हेन NaCl इज हीटेड इन सोडियम वेपर्स, पूरा ढंग से नहीं पढ़ते, हीटेड पढ़ लेते हैं एंड दे राइट वैकेंसी डिफेक्ट। जब भी कभी एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कोई भी, यू नीड टू रीड इट थॉरली। उसमें सपोज कई बार कलर चेंज भी होता है लिखा हुआ, इवन सपोज द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन दिस वे, विच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज क्रिएटेड व्हेन सोडियम क्लोराइड इज हीटेड विद सोडियम वेपर्स। ठीक है, तो हीटेड देख के आपने सीधा वैकेंसी डिफेक्ट पे नहीं जाना है, ये एक तरह का वैकेंसी डिफेक्ट ही, बट यहाँ स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हुई है तो इसको आपने नेम देना है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इवन नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट भी दे सकते हो, बट बेटर है कि उसकी जो टाइप है आपको वो पता हो। और उसके बाद अगर क्वेश्चन है कि वाई सोडियम क्लोराइड अपीयर्स टू बी येलो व्हेन हीटेड विद सोडियम वेपर्स, देन यू नीड टू एक्सप्लेन दिस एंटायर पैराग्राफ। ये पूरा पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, व्हाट इज एक्चुअली देयर when sodium chloride is heated with vapors of sodium। तो सोडियम वेपर्स यहाँ सरफेस पे आ जाते हैं एटम के, सोडियम के एटम्स की फॉर्म में। नाउ दीज सोडियम एटम्स आर क्वाइट रिएक्टिव, मेटल एटम्स आपको पता है रिएक्टिव होंगे, तो किसी तरह से वो मतलब रिएक्ट करना चाहेंगे क्लोराइड आयन से। तो क्लोराइड आयन इसलिए कुछ लेटिस पॉइंट्स छोड़ के सोडियम एटम्स के साथ रिएक्ट करने के लिए सरफेस पे आ जाते हैं, तो यहाँ होगी वैकेंसी जनरेटेड। अब जो क्लोराइड आयन यहाँ से गए हैं सोडियम से रिएक्ट करने के लिए, तो सोडियम एटम्स आर राइट नाउ इन न्यूट्रल फॉर्म, ओके, बिकॉज वेपर्स आपने लिए तो वो मेटालिक वेपर में एटम्स की फॉर्म में ही है। दीज सोडियम एटम्स विल लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम आयन and then they will combine with chloride ion to form NaCl। अब NaCl तो फॉर्म हो गया, वो तो वैसा ही क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे, बट जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं सोडियम में से सोडियम आयन बनाने के लिए, those electrons will occupy these crystal lattice because otherwise crystal lattice की न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रहेगी। तो एक साइमल्टेनियस प्रोसेस चलता रहता है कि सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया वो यहाँ आ जाता है एंड क्लोराइड आयन लीव दिस लैटिस पॉइंट इन ऑर्डर टू कंबाइन विद सोडियम आयन। क्लियर? तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ क्रिस्टल में आ गया, दिस रिमेन्स अनपेयर्ड, क्योंकि ये एक लैटिस पॉइंट पे एक आएगा, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स बीइंग अनपेयर्ड, दे you can say absorb energy from visible region and
इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कलर, क्योंकि अब विजिबल रीजन की जो लाइट इस पे फॉल हो रही है उसमें से ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ अगर एब्जॉर्ब कर लेता है तो ट्रांसमिटेड लाइट जो होगी दैट विल बी you can say of different color. So in this way these electrons are known as colored center, और F center इनको नेम दिया गया है. F is taken from German word Farbenzenter. Farbenzenter का मीनिंग है कलर्ड सेंटर. तो दिस ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आता है, व्हाट इज मेंट बाय एफ सेंटर. तो एफ सेंटर्स आर द कलर्ड सेंटर दैट इज अ काइंड ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनायनिक वेकेंट साइट. एनायनिक वेकेंट साइट इसको हम कहते हैं जिसपे ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं इन साइट्स को, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कलर. दूसरी तरह का नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर ही, जिसमें एनायंस ने कुछ चेंजेस नहीं किए, एक्स्ट्रा कैटायंस आ जाते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर में. तो ये भी एक एक्टिविटी है बुक में. लाइक एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड व्हेन हीटेड इट टर्न्स येलो इन कलर. तो रीजन क्या है, यहाँ पर ये जो जिंक आयंस एक्स्ट्रा है इंटरस्टिशियल पोजीशंस में आ जाते हैं ये, एंड these zinc ions move to interstitial sites and electrons, क्योंकि अब देखो बेटा एक्स्ट्रा जिंक आयन आए तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रहेगी. एक्स्ट्रा कैटायन आ गए तो अब थ्रू आउट क्रिस्टल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी क्रिस्टल्स की इंटरस्टिशियल साइट्स पे, मतलब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स एंड कैटायन both will occupy interstitial sites because all lattice points are already acquired with cations as well as anion. Okay, तो और ऑक्सीजन जो है वो एस्केप कर जाती है हीट करने पे. तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी आ गए हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं बट रहेंगे अलग अलग इंटरस्टिशियल साइट्स में अनपेयर्ड फॉर्म में. तो दीज इलेक्ट्रॉन्स विल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कलर. बट यहाँ पे हमने इसको एफ सेंटर नेम नहीं दिया बिकॉज एक्चुअली ये डिफेक्ट में एफ सेंटर हम उस जगह को नेम दे रहे हैं जहां पर एनायनिक वेकेंट साइट्स को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ने ऑक्यूपाई किया. मेनी टाइम स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि कलर तो ये दोनों जगह दे रहा है, हम एफ को रिलेट कर रहे हैं कलर्ड सेंटर से, बट एक्चुअली कलर्ड सेंटर वहां पे हमने एक लेटिस पॉइंट को नेम दिया क्योंकि वहां पे एक एग्जैक्ट लेटिस पॉइंट इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल साइट्स वॉइड्स में आया. क्लियर. तो जब भी कभी एफ सेंटर का एग्जांपल देना है, मेनी टाइम स्टूडेंट्स गिव एग्जांपल ऑफ जिंक ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एफ सेंटर, रादर एफ सेंटर में आपने एग्जांपल सिर्फ एल्कली मेटल हैलाइड्स का ही देना है. क्लियर. तो ये छोटे छोटे ऐसे मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं, और ये क्वेश्चंस आपको मैंने बताया एक क्वेश्चन कंपलसरी है बोर्ड में भी और स्कूल एग्जाम में भी फ्रॉम डिफेक्ट्स. क्लियर. नेक्स्ट इज मेटल डेफिशिएंसी. तो इसमें बेटा एक ऐसा मेटल आयन होगा जो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है. जैसे हमने इंप्योरिटी डिफेक्ट में देखा सोडियम को स्ट्रोंशियम से रिप्लेस किया, यहाँ पर सेम टाइप का ही, जैसे फेरस आयन गेट रिप्लेस्ड बाय फेरिक आयन इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ FeO. तो FeO का जो फॉर्मूला है Fe1:1 रेशो में होने चाहिए, तो जितने फेरस एटम है उतने ही ऑक्साइड आयन होने चाहिए, बट यहाँ पर सेम नहीं रहते बिकॉज फेरस आयन्स आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू फेरिक आयन. क्लियर. अब वो जितने फेरिक आयन बनेंगे उसमें से न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए वो फेरस आयंस जो हैं वो लीव कर जाते हैं अपनी साइड, तो वैकेंसीज आर आल्सो जनरेटेड. और अगर सपोज 3 फेरस आयन लीव करते हैं अपनी वेकेंट साइड तो उसकी जगह पे 2 फेरिक आयंस ही आएंगे, क्योंकि देखो 3 फेरस आयन विल हैव वैलेंसी 6, टोटल पॉजिटिव चार्ज 6 होगा ना, एक फेरस पे 2 है, तो फॉर 3 फेरस आयंस इट विल बी 6, एंड 6 पॉजिटिव चार्ज के लिए आपके पास 2 फेरिक आयंस वहां पर क्रिस्टल में आएंगे, लीविंग 1 वैकेंसी. क्लियर. तो क्रिस्टल का जो फॉर्मूला स्टोइकियोमेट्री रेशियो है वो 1/1 ना होके इट मे एक्चुअली रेंज फ्रॉम 0.93 to 0.96, इसमें से कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो दिस इज अ काइंड ऑफ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. नेक्स्ट विल मूव टू इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. एक्चुअली अब आपने देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है उनमें से बेसिकली हमारे जो मेटालिक सॉलिड्स हैं and ionic solids, these are responsible for conducting electricity, but actually ionic solids do not conduct electricity in solid state. तो generally solid state में जो electrical conduction हो रहा है that is because of metal conductors. तो हमें थोड़ा सा metal conductors के बारे में, like इस पूरे टॉपिक में why metals are good conductors and what are insulators and semiconductors, actually थोड़ा सा description. So electrical properties of solids means solids can behave in the presence when some they are
kept in electrical or they are connected with some electrical circuit. So what happens? Do they conduct electricity or not? On the basis of that, these solids are classified into three types: conductors, insulators, and semiconductors. So let us see them. Just so first of all, we'll discuss about conductors. The solids which have conductivity. Conductivity is the, you can say, physical property of a solid. And if it ranges from 10 raised to the power 4 to 10 raised to the power 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, जैसे रेजिस्टिविटी होता है आपका ओम इंटू मीटर, उसका रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी. So this conductivity must range from 10 raised to the power 4 to 10 raised to the power 7. Then those solids are classified under conductors. And metals generally have conductivity in the order of 10 raised to the power 7 ohm inverse. So in this way, metals are defined as very good conductors of electricity. And these are the only solids which conduct electricity in their solid state as well. Okay. So next we'll see एक्चुअली जो सेमीकंडक्टर्स हैं और इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर्स की तो कंडक्टिविटीज जो हैं वो नेगेटिव पार्ट्स में ही होती है, काफी हाई नेगेटिव वैल्यूज होती हैं. एंड सेमीकंडक्टर्स लाई समवेयर इन बिटवीन दीज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. तो गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, दीज आर एंड सिल्वर, these are the best conductors of electricity in solid state. So as you know that copper and aluminum are mainly used to form, you can say, variety of electrical equipments and wires and all. And the conductivity is actually based on this. हमें अगर किसी भी solid की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है, तो एक थोड़ा सा आपको मैं रिमाइंड करवा दूं. अगर हमने 11th में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी, व्हाट वाज दैट थ्योरी? व्हेन टू एटम्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, जिसको हम एमओज कहते हैं. एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ मेटल्स, मेटल क्रिस्टल्स के अंदर मेटल एटम्स आर वेरी, यू कैन से, क्लोजली पैक्ड, बिकॉज ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट है, मेटल एटम्स बहुत क्लोज होते हैं. और सारे मेटल एटम्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, स्पेशली द वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्योंकि बाकियों को तो हम कंसीडर नहीं करते, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी हम जनरली वी आर डीलिंग विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ना. तो ये जो वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन्स गए हुए हैं, अब जनरली मेटल्स क्या हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाले होते हैं मेनली. तो इनमें डी ऑर्बिटल एंड आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल दोनों में इलेक्ट्रॉन्स है. अब ये जो ऑर्बिटल्स है अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी वाले होते हैं. एंड ऑल दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल्स कलेक्टिवली फॉर्म, मतलब इतने सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एक साथ में कंबाइन होकर वो बन जाते हैं कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोक्सीमेटली इक्वल एनर्जी वाले होते हैं. और उन सारे लेवल्स को या ऑर्बिटल्स को मिला के एक बैंड फॉर्म हो जाता है. तो दिस बैंड विच यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, दिस इज नोन एज, तो ये वैलेंस, जो लोअर बैंड था, दिस इज नोन एज वैलेंस बॉन्ड वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. और दूसरा जो अपर बैंड आपको दिख रहा था, दैट इज अ काइंड ऑफ कंडक्शन बैंड. एंड इन दिस कंडक्शन बैंड यू कैन सी दिस इज एक्चुअली एम्प्टी. इसमें मतलब जो नियर बाय हायर एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, जो जनरली खाली होता है, तो ये उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके ये कंडक्शन बैंड फ्रेम करते हैं. और वैलेंस बैंड में जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं. इन दोनों बैंड्स के बीच में या तो ये बैंड्स इस तरह से ओवरलैप कर जाते हैं जिन सॉलिड्स के अंदर, तो क्या होता है, जैसे ही ये ओवरलैपिंग होती है, मतलब इनमें एनर्जी डिफरेंस इतना कम होता है कि दे गेट ओवरलैप विद ईच अदर. और समटाइम्स किसी मेटल के अंदर ये वैलेंस बैंड इटसेल्फ ही पार्शियली फिल्ड होता है. तो जो भी कंडीशन है उस केस में इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम दिस वैलेंस बैंड इनटू कंडक्शन बैंड. और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जब एंटर कर जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स, हम कहते हैं कि ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, दे आर वेरी गुड कंडक्टर. और इस केस में जो डिफरेंस आप देख रहे हो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का, दैट इज वेरी लो, जिसमें फॉरबिडन गैप जिसको हम कहते हैं वो बहुत कम होता है, बिकॉज और बैंड्स आर ओवरलैप्ड विद ईच अदर. तो दीज सॉलिड्स इन विच forbidden gap is very less and electrons can move from valence band to conduction band easily, those solids are known as conductors.
let us discuss about insulators. Those solids which do not allow electricity to flow through them, that you know, they are known as insulators. And इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरली नॉन मेटल्स, जैसे आपने पढ़े हुए हैं लोअर क्लासेस में भी, नॉन मेटल्स लाइक, और भी वेराइटी ऑफ पॉलीमर्स हैं, प्लास्टिक्स हैं हमारे पास, रबर्स हैं, दीज आर एक्चुअली इंसुलेटर्स. तो इनमें क्या होता है, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फुल होता है और कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, और दोनों बैंड के बीच में बहुत ज्यादा फॉरबिडन गैप रहता है. मतलब एनर्जी गैप इतना ज्यादा होता है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते, बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. इवन हीट करने पे भी उतनी एनर्जी नहीं मिलती कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हायर कंडक्शन बैंड में चले जाए. तो ड्यू टू दिस लार्ज फॉरबिडन गैप, these substances, these solids cannot conduct electricity because electrons are not free to move here, and these kind of solids are known as insulators. Let us see the third possibility, which is wait. So in case of semiconductors, the conductivity जो values हैं, that ranges from 10 raised to the power -6 to 10 raised to the power 4, और उसमें 10 raised to the power -7 से beyond चली जाती है conductivities की value for insulators. So these solids which have conductivity values in between conductors and insulators are termed as semiconductors. And actually in semiconductors, the adjustment of, या examples जो दो important semiconductors use होते हैं, germanium and silicon. These two substances are used as semiconductors. And semiconductors में ये जो आप bands देख रहे हो, जो valence band and conduction band है, valence band otherwise तो full होता है, जो metals में sometime partially filled या फिर half filled हो सकता है. And this forbidden gap is very narrow. मतलब सेमीकंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो इतना कम रहता है कि वो थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही इलेक्ट्रॉन कैन जंप from valence band to conduction band, and they result in conduction of very small amount of electricity. And when we increase the temperature, then what happens, this more and more electrons can enter from valence band to conduction band. Hence in semiconductors that you can say टेम्परेचर इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी, बट मेटल्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी कम होती है. का रीजन है कि मेटल आयंस खुद तेजी से वाइब्रेट होने लगते हैं, एंड दे हिंडर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. दैट विल डिस्कस लेटर. अभी हम सेमीकंडक्टर्स में, ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनके थोड़ी सी जो अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं अपनी प्योर फॉर्म में, दे आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. इंट्रिंसिक मतलब सिर्फ उनकी अपनी प्योर फॉर्म में ही जो थोड़ी बहुत कंडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी की, दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. एंड एट रूम टेम्परेचर्स द कंडक्टिविटी ऑफ दीज सेमीकंडक्टर्स आर क्वाइट लो. तो थोड़ा सा इंक्रीज होती है अगर हम इनको हीट कर दें, बट अदरवाइज वी कैन ऐड सर्टेन अमाउंट ऑफ impurity in these intrinsic semiconductor, and this process of adding impurity is known as doping, and the impurities are called as dopants. अब ये impurity मिलाने के बाद जो conductors बने हैं, these conductors will have high amount of conductivity, and these conductors are known as extrinsic. मतलब intrinsic है generally germanium and silicon, उसमें अगर हम doping कर दें, डोपिंग होती है एक ऐसी टेक्निक, जैसे हमने इम्प्यूरिटी डिफेक्ट पढ़ा था, इसमें ऐसी इम्प्यूरिटी एक सर्टेन अमाउंट में ऐड कर देनी है जो उस क्रिस्टल को ज्यादा कंडक्टिव बना दे, मतलब उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर दे. तो डोपिंग इज अ मेथड ऑफ or process of adding impurity in an intrinsic conductor semiconductor to increase its conductivity. तो ये हम दो तरह से कर सकते हैं डोपिंग. अब जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, अगर हम उसमें 15th ग्रुप का एलिमेंट ऐड करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटी है. अगर हम 13 ग्रुप के एलिमेंट ऐड करते हैं देन इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्यूरिटी. तो फर्स्टली वी विल टेक एग्जांपल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटी, where group 14 elements like silicon, germanium, these have actually 4 valence electrons क्योंकि group 14 के हैं. अब हमने group 15 elements की कोई impurity ऐड कर दी, like phosphorus में भी, arsenic में भी, ओके, ग्रुप 15 का कोई भी एलिमेंट आपने इसमें ऐड कर दिया. तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स
अभी देखो ये ग्रुप 14 की स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, हियर इट ईच एटम इज हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और जैसे कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सिमिलरली सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आल्सो फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स इन देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर. बट इफ वी ऐड, हमने एक सिलिकॉन को रिप्लेस किया था यहाँ पे एक फॉस्फोरस या आर्सेनिक से, जिनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड तो बन जाएंगे, बट एक इलेक्ट्रॉन अभी भी एक्स्ट्रा बच गया. ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज नाउ फ्री टू मूव बिकॉज इट रिमेन्स delocalized in the crystal structure. And whenever electric current is supplied to this solid, it will start moving. ये इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी मूव कर सकता है, तो ये कंडक्टिविटी मतलब it will take away the electrical current. So these kind of conductors in which electricity is or conductivity is increased by adding certain electron rich element, they are known as n type semiconductors. क्योंकि इन n का मतलब है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडक्टिविटी. तो सेमीकंडक्टर्स डोप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज आर नोन एज n टाइप सेमीकंडक्टर्स. ठीक है, नेक्स्ट अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेमीकंडक्टर्स, जिसमें हमने 13th ग्रुप की इंप्यूरिटीज ऐड करनी है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी ऐड बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम, ग्रुप 13 एलिमेंट अगर हम ऐड करते हैं, दैट व्हाट हैपेंस, इन ग्रुप एलिमेंट्स के पास सिर्फ 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. आपको सिलिकॉन या जर्मेनियम जिनमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 वैलेंस बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. ठीक है, बट हियर इफ वी हैव रिप्लेस्ड वन सिलिकॉन और जर्मेनियम विद दिस बोरॉन और एल्यूमिनियम, वी हैव जस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स. So obviously 3 electrons are there, so 3 normal covalent bonds will be formed by this element, but 4th valence bond ये नहीं बना पाएगा. ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गया अनपेयर्ड, और इस पर्टिकुलर एटम के पास ये एक होल जनरेट हो गया, जिसके पास मतलब एक डेफिशिएंसी आ गई. अब क्या होता है, जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल सर्किट से इसको कनेक्ट करते हैं सॉलिड को, तो इस होल के अंदर मतलब इस होल की जो डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसको फुलफिल करने के लिए एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन्स इस होल में आते हैं. अब इधर होल जनरेट हो गया एज यू कैन सी हियर. अब इस होल की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी करेगा, मतलब नेगेटिव जो पोल होगा जहां से आपने सर्किट से इसको कंडक्ट किया, वहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव, मतलब होल जो बना है उसको फिल किया जाएगा एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन से. तो इन दिस वे दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज होल, हेंस दे आर नोन एज p type semiconductors. And p type semiconductors are formed by adding or doping of electron deficient element, which is 13th group element, boron, aluminium and gallium you can say. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ, अब ये वो हो गया सेमीकंडक्टर. अब ये है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीज विद द टेम्परेचर. ये मैंने आपको बताया था, मेटल्स के केस में क्या होता है कि मेटल आयंस अपनी फिक्स पोजीशन पे होते हैं. अब रूम टेम्परेचर ले लिया या आपने कम टेम्परेचर पे भी देखा, तो इतनी ज्यादा उनमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, बिकॉज दे जस्ट वाइब्रेट ओनली ऑन देयर पोजीशन. बट व्हाट हैपेंस व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये मेटल एटम्स बहुत फास्ट वाइब्रेट होने लगते हैं, एंड दे एज दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो हिंडर हो जाता है. This results in decreasing electrical conductivity in metals. Remember this thing. But semiconductors में उनकी जो electrical conductivity है वो always increase होगी temperature increase करने से, because in these elements, in these substances, with increase in temperature, more electrons can move from valence band to conduction band. This is actually called band theory of इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. जो आपको फिर से एक बार रिकैप दे देती हूँ मैं. सॉलिड्स के केस में वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड दोनों ही बहुत आप ओवरलैप किए हुए होते हैं, या फिर वैलेंस बैंड में ही पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वहीं पर अच्छे से मूव कर सकते हैं. वेयर एज इन